شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بدنیتی، بے ایمانی، فراڈ اور بدنیتی کی بنیاد پر قائم ہونے والے معاشرے اور اس کے قانون اور انصاف کے ایوانوں میں ناچتی ہوئی انسانیت اور عدل کے ایوانوں میں بکرا منڈی کی ننگی داستانوں کے ساتھ ہم اپنی پچھلی قسط سے یہ واقعات آگے بڑھاتے ہیں، اور انٹروڈکشن کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ جب میاں کاشف امین، اس کا والد میاں امجد امین اور اس کی والدہ عذرا بھٹی کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں اور معاملہ طے ہوئے، اسٹامپ پیپر لیا گیا اور اس کو تحریری طور پر معاہدے کی صورت میں پایا تکمیل تک پہنچایا گیا، تو پہلی پریشانی یہ تھی کہ فیکٹری کو شفٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہاں پر ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہوا تھا جو 8-10 لاکھ کا تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ سیزن کیونکہ ایک ہی ابھی پہلا سال تھا بزنس کا، اور اس میں جتنا منافع کمایا تھا اس منافع میں شفٹنگ اور ریکنسٹرکشن میں سارا منافع وہاں پر جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن میاں شاہد امین، اس کی والدہ اور اس کے والد کو بہت جلدی تھی کہ ہم فوری طور پر اپنی فیکٹری کو وہاں شفٹ کریں اور جتنی جلدی ہو سکتے وہاں پر اس کی چار دیواری اور اس پر انفراسٹرکچر کی تعمیر شروع کریں۔ اس جلدی کی کیا وجہ تھی یہ اس وقت مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ اس میں ایک اور منصوبہ بندی تھی، اس میں ایک اور فراڈ تھا، اور اس میں ایک اور بدنیتی تھی۔ لیکن کیونکہ فرد نکال کے دکھا دی گئی تھی، اور فرد نہ تو عذرا بھٹی کے نام تھی، نہ میاں امجد امین کے نام، نہ میاں کاشف کے نام، نہ میاں شاہد کے نام، فرد جو تھی وہ امداد حسین بھٹی کے نام تھی، جو کہ عذرا بھٹی کا بھتیجا تھا۔ اور اس کو جب میں نے کہا کہ یہ فرد کسی اور شخص کی ہے تو اس کو بلوا کے ملوایا گیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور ہماری پراپرٹی کا کسٹوڈین ہے، یعنی بے نامی جائیداد کا وارث ہے۔ تو فرد تازہ تھی اور مشترکہ کھاتا تھا۔ مشترکہ کھاتے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب فرد نکلتی ہے تو جس کا قبضہ ہوتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ تو امجد امین اور عذرا بھٹی کو سب سے زیادہ جلدی یہ تھی کہ میں وہاں پر کنسٹرکشن سٹارٹ کروں اور 2-3 مہینے کے اندر اندر وہاں پر شفٹ ہو جاؤں۔ اور جب میں انہیں کہتا تھا کہ 3 کنال پر پہلے میں 4 دیواری اور کنسٹرکشن کروں گا، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ میں 7 کنال کی ہی 4 دیواری کروں، جبکہ اگر فیکٹری بنانا چاہتا ہوں تو ابتدائی طور پر 3 کنال پر فیکٹری بناؤں۔ اب اس کی میں آپ کو بعد میں جا کے یہ لنک دوں گا کہ کتنا بڑا فراڈ تھا، اور ان کے ذہن میں اتنی بڑی منصوبہ بندی تھی کہ اتنی عجلت میں وہ سب یہ کیوں کروانا چاہ رہے تھے۔ اور کیونکہ میاں شاہد میرا اکاؤنٹنٹ تھا، وہ ڈیلی آ کے کہتا تھا کہ سر وائنڈ اپ کریں اور آگے شفٹ ہوں۔ یہ ایک بڑا منصوبہ تھا جس پر ہم نے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا نیکسٹ ایئر کا جو سیزن خراب ہو، اس لیے ٹھیکیدار کو کہا کہ زیادہ لیبر لگا کے آپ اس کو جتنی جلدی ہو سکے 2 سے 3 ماہ میں پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ اور میری انٹینشن یہ تھی کہ میں کم سرمایہ لگا کے 3 کنال کی 4 دیواری پر 3-4 لاکھ روپیہ لگ رہا تھا، جبکہ 7 کنال کی 4 دیواری پر صرف 4 دیواری پر 8 لاکھ روپیہ لگ رہا تھا ٹھیکیدار کے بقول۔ لیکن ان کی خواہش اور ان کی ضد یہ تھی کہ 7 کنال کی ہی 4 دیواری کی جائے، اور اس میں سرمایہ کی فکر نہ کی جائے، کیونکہ 20 لاکھ تو انہوں نے دینا ہے، اس زمین کے علاوہ 20 لاکھ دینا ہے۔ ایک اور میں آپ کو یہاں بات بتاتا چلا جاؤں کہ جو زمین 10 لاکھ کی تھی اس کا ریٹ 16,20,000 طے کیا گیا۔ وجہ کیا بتائی گئی؟ وجہ یہ بتائی گئی معاہدے میں، کیونکہ میں نے 4 سال میں انسٹالمنٹ میں پیسے دینے ہیں، لہٰذا جو قسطوں کا زمین ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے۔ لاجیکل بات تھی، میں نے قبول کیا، میں نے سائن کیے اور میں نے اس معاہدے کو آگے بڑھایا۔ اب ٹھیکیدار نے جنگی بنیادوں پر زیادہ لیبر لگا کے اور زیادہ مشینری لگا کے ہماری فیکٹری کی 4 دیواری اور اس کے گودام اور اس کی جو انفراسٹرکچر اس کی تعمیر کا آغاز کیا، جس کو ہم نے ریگولر مانیٹر کیا۔ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہماری ایڈوانس بکنگ کا سیزن جو ہے وہ گزر جائے۔ 3 ماہ کے قلیل عرصے میں ہم نے شاہپور کانجرا سے اپنی فیکٹری رائے وین روڈ بھوفتیاں چوک کے پاس شفٹ کر لی، اور اس فیکٹری میں شفٹ ہونے کے بعد کیونکہ آفس بلاک ابھی پراپر نہیں بنا تھا تو آفس بلاک میں نے کینال ویو میں ہی رکھا، اور آفس بلاک کو اگلے سال پر منتقل کیا کیونکہ سرمایہ کافی لگ چکا تھا اور ورکنگ کیپٹل سارا کنسٹرکشن میں جا چکا تھا۔ اب یہ ان کا منصوبہ، جب میں وہاں جا کے اس فیکٹری میں پروڈکشن میں نے سٹارٹ کی اور وہاں جا کے
उस इलाके में लोगों ने मुझसे मिलना जुलना शुरू किया। 3 माह में बिजली का कनेक्शन भी लग गया, ड्रेनेज ऑलरेडी मौजूद था और हमने बाकायदा प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। वहाँ की लेबर ली और वहाँ से लोकल लेबर से हमने वहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट की। मैनेजमेंट और जो मैनेजर्स थे प्रोडक्शन के वो हमारे ऑलरेडी एक्सपर्ट लोग थे। अब जब वहाँ पर 1.5-2 माह हमने अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया तो सरगोशियों में ये पता चलना शुरू हुआ कि ये जो 7 कैनाल पर 4 दीवारी करवाई गई और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मेरा पैसा सरमाया लगवाया गया, वो बेसिकली मुश्तरका खाते में 1.5 कनाल इनकी थी और तकरीबन 5.5 कनाल जो है वो मलक मंजूर जो इनका मुश्तरका खाते का साझीदार था, यानी मुश्तरका खाते का इनका पार्टनर था, वो उसकी ज़मीन थी और वो उन दिनों बैरून मुल्क था। और जब हम फैक्ट्री तामीर कर चुके, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी, तो मलक मंजूर बैरून मुल्क से वापस आया तो उसने मलक मंजूर के बारे में मैं आपको बताऊँ, इंतहाई शरीफ आदमी और वो लड़ने भिड़ने वाला नहीं है। वो मैं आपको उसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जमील भट्टी ने उसके 170 कनाल के सेंटर में 4 कनाल पर कब्ज़ा किया हुआ था, लेकिन वो उसके साथ बैठा चाय भी पी रहा होता था अपने दफ्तर में। यानी उस काबिज शख्स के साथ, जमील भट्टी के साथ, जिसने 4 कनाल पर कब्ज़ा किया हुआ है, वो आते जाते उसकी काबिज शुदा ज़मीन पे आते जाते उससे चाय भी पीता था और वो उससे लड़ता नहीं था। तो उसने पैगाम भेजा मुझे, मेरा मोबाइल नंबर लिया और मुझसे फ़ोन पर बात की। उसने कहा ये जो मुश्तरका खाता है इसमें ये 5.5 कनाल तकरीबन 5.25 कनाल मेरी है, जबकि जो इनकी ज़मीन है वो 1.5-1.25 कनाल के करीब है और आपने 4 दीवारी की है। तो उस पर मैंने मलक मंजूर के गोश गुजार किया कि क्योंकि ये मुश्तरका खाता है, इन्होंने मुझे फ़र्द निकाल के दी है और हमारा बाकायदा उस फ़र्द की बुनियाद पर मुआहदा हुआ है। तो उसने कहा कि ये वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा, लेकिन मुझे एक सुकून ये था कि मुश्तरका खाते में ये होता है कि जो बुनियादी तौर पर काबिज़ होता है वो मुश्तरका खाते में मालिक भी तस्वर होता है। लिहाजा अगर दोनों में मुश्तरका खाता है और 16 कनाल का मुश्तरका खाता है तो मुझे ये कम अज़ कम कानूनी तौर पर एक इत्मीनान था कि अगर ये फ़र्ज़ करें इनमें कोई डिस्प्यूट भी क्रिएट होता है तो कम अज़ कम इनकी इतनी ज़मीन ज़रूर निकलती है जिसकी बुनियाद पर हम इस कब्ज़े को, इसकी रजिस्ट्री इंतकाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे। मलक मंजूर जो है वो गाहे बगाहे टेलीफोन पर अपना गिले शिकवे ज़रूर करता था, लेकिन उसने अमली तौर पर वहाँ पर कोई ऐसी हरकत नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं। उसका आना जाना था, कारपेट की सामने फैक्ट्री थी और वो गुज़रता भी था, उसने ब्रिज भी बनाया हुआ था। उसकी इसी 7 कनाल के साथ 4 कनाल और भी थी जो कि उसने जिसके साथ सामने ब्रिज बनाया हुआ था। अब ये तो इनका प्लान उजलत में ये था कि मलक मंजूर की जो ज़मीन है उसको भी अंदर शामिल करके मुश्तरका खाते में से इसको कब्ज़ा करवा दें और फिर मलक मंजूर लड़ने वाला नहीं है, उसके साथ हम लड़ते रहें, ये भी लड़ता रहे क्योंकि इसने भी मुआहदा कर लिया है और हम भी लड़ते रहेंगे, मलक मंजूर नहीं लड़ सकेगा। तो ये पहला धोखा था जो इन्होंने मुझसे किया। और दूसरी बात उनकी उजलत में ये सब कुछ करवाने का ये था कि उन दिनों 2002 में अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी से लेन देन के वाबस्ता किसी शख्स से पूछें, 2002 में प्रॉपर्टी बहुत पैनिक पे थी और वो बिक नहीं रही थी। इन्होंने 4 साल की इंस्टॉलमेंट भी इसलिए मुझे पेमेंट का कहा कि वहाँ उस वक्त ये भूखे मर रहे थे, इनकी कोई डील नहीं हो रही थी और इनके घर खाने पीने के लिए भी चीज़ें, हत्ता कि मैं आपको बताऊँ कि जब कभी मैं इनके घर जाता था तो अज़रा भट्टी जो है वो मुझे कहती थी कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, 5,000 भी हैं तो हमें दे दो, हमें ज़रूरत है। यानी ये वो प्यार मोहब्बत में बेटे के तौर पर कभी 10 ले लिया, कभी 5 ले लिया, ये हिसाब किताब में शामिल नहीं था। यानी इनके उस वक्त हालात इस तरह के थे कि ये वो 4 साल का मुआहदा अपनी फेवर में समझ के कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि चलो 4 साल के लिए कम अज़ कम इतनी अमाउंट आती रहेगी कि इनके घर के अखराजात चलते रहेंगे। अब जब हम वहाँ शिफ्ट हो गए, वहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, वहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया, ऑफिस ब्लॉक वहाँ पर नहीं था, जिसकी वजह से अकाउंटेंट एक कमरे में वहाँ बैठता था, जबकि मैंने ऑफिस कैनाल व्यू में रखा हुआ था। 1 साल के लिए मैंने प्लान किया था कि उसके बाद प्रॉपर ऑफिस ब्लॉक बना के वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो हुआ क्या, हुआ ये कि हमने नई फैक्ट्री की इब्तिदा में बहुत सारे अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने लोगों को मदऊ किया था और उनको, बल्कि हमने बाकायदा इसकी तशहीर की, इसकी बाकायदा पम्फलेट बनाए कि हम बड़ी फैक्ट्री में और बड़ी प्रोडक्शन में चले गए ताकि हमारे जो ऑर्डर है उसके मुताबिक आ सके। अब
प्लान ए तो उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया, यानी उन्होंने 7 कैनाल पर मेरे से 4 दीवारी करवा दी, 5 कैनाल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दिया, और उनकी जो 4 साल की पेमेंट ड्यू है वो उनको मिलने के लिए उम्मीद हो गई, क्योंकि मैं उनकी ज़मीन पर बैठा था, मैंने हर सूरत में देनी थी। अब अगला स्टेप था 20 लाख का। उन्होंने 20 लाख मुआहदे के मुताबिक पार्टनरशिप के बेटे को 50% पार्टनरशिप करवाने के लिए 20 लाख रुपया देना था, जो 3 माह का वादा था उनका। अब कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के बाद 3 माह भी ख़त्म हो गए। अब जो मेरे पास वर्किंग कैपिटल था वो मैंने सारा फैक्ट्री पर लगा दिया। इस लगाने के बाद जब मैं 20 लाख का मुतालबा करता था तो मुझसे 15 दिन, 2 वीक, 20 दिन, हमारी फ़लाँ सौदा हो रहा है, हमारे फ़लाँ जगह से पैसे आने हैं। तो उस अरसे में जब मैंने ये देखा कि ये मेरे से 10-10, 15-15 हज़ार भी ईंट रहे हैं, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये फाइनेंशियली बिल्कुल डंप हुए हैं, और इस सूरत में इनके पास से 20 लाख रुपया आने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मैं वर्किंग कैपिटल सारा फैक्ट्री पर लगा चुका था, इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मैंने बी प्लान किया। मैंने एक एडवांस बुकिंग स्कीम दी, क्योंकि पहले साल में भी हमारी 100 मेट्रिक टन तकरीबन केमिकल की एडवांस बुकिंग हो गई थी। यहाँ पर हमने 3 प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिए थे। उस एडवांस बुकिंग स्कीम में पहले माह में बहुत अच्छी पजीराई मिली हमें, और काफ़ी हमें पे ऑर्डर्स और ड्राफ्ट लोग दे के गए, फैक्ट्री भी विज़िट की लोगों ने, और प्रोडक्शन भी उन्हें दिखाई गई। फिर अज़रा भट्टी, मियाँ अमजद अमीन और मियाँ शाहिद अमीन ये प्लान बी पर चले गए। जब इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा एडवांस बुकिंग हो रही है, तो ये प्लान बी इन्होंने घर में तरतीब दिया। इन्होंने कहा कि क्योंकि प्रोडक्शन अब स्टार्ट हो रही है, शाहिद अमीन को पता चल गया है, एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं, प्रोडक्शन में रुकावट नहीं आ सकती। जिन वेंडर से प्रोडक्ट लिया जाता था, यानी रॉ मटेरियल लिया जाता था, उसके कॉन्टैक्ट नंबर शायद के पास आ गए। जो कस्टमर लिस्ट थी वो भी अकाउंटेंट के पास मौजूद थी, जो एडवांस बुकिंग वाले वो भी उसके पास, और जो सीज़न वाले वो भी उसके पास शार्ट आउटेड थे। तो उन्होंने घर में बैठ के एक नया मंसूबा बनाया। उन्होंने मंसूबा ये बनाया कि इसको, क्योंकि इसका सारा सरमाया हमारी ज़मीन पर लग चुका है, और इस बुनियाद पर इसके पास अब सवाए मार्केटिंग के और मार्केटिंग टीम के ज़रिए एडवांस इकट्ठा करके प्रोडक्शन स्टार्ट करने के कोई चारा नहीं है। अब ये इसने गो थ्रू कर लिया है, और हमें पहले महीने में जो एडवांस बुकिंग आई वो तकरीबन 80 मेट्रिक टन की हमें एडवांस बुकिंग, जो बड़ी हैंडसम एक महीने में एडवांस बुकिंग थी, जिससे हम तकरीबन 125 मेट्रिक टन की रॉ मटेरियल ख़रीद सकते थे। तो इन्होंने घर में बैठ के मंसूबा ये बनाया कि शाहिद अमीन, क्योंकि उस फैक्ट्री में बैठता था, इन्होंने, और टेलीफोन लाइंस थी 2, मेरे पास मोबाइल था, जो टेलीफोन लाइंस थी वो फैक्ट्री की, वो फैक्ट्री में 2 लगवाई गई थी, उस पर शाहिद अमीन बराजमान होता था। अब इन्होंने मंसूबा ये बनाया, माँ, बेटे और बाप ने, कि जो भी मार्केटिंग से डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर का टेलीफोन आए तो उसको कान में सरगोशी करें कि ये तो इसके पास तो कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल फैक्ट्री हमारी है, और ये तो इसके पास तो आप प्रोडक्शन के पैसे नहीं, तो आप एडवांस बुकिंग मत दीजिएगा। अब नेक्स्ट मंथ जो हमने बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव एक स्कीम दी हुई थी एडवांस बुकिंग की, उसकी पॉलिसी में 0 एडवांस बुकिंग आई। पहले महीने में 80 मेट्रिक टन की एडवांस बुकिंग आई, और दूसरे महीने में 0, जबकि दूसरे महीने में हम 100 मेट्रिक टन से ज़्यादा एडवांस बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उसके लिए जो मार्केटिंग टीम है उनकी मैंने 2 मरतबा मीटिंग की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका, क्योंकि टेलीफोन पर या कोई विज़िट करता था तो शाहिद अमीन उसके कान में सरगोशी करता था। मतलब ये था, इस सारी मनसूबाबंदी का मतलब ये था कि फैक्ट्री में, क्योंकि अब सब कुछ लग चुका है, ज़मीन अभी मेरे नाम ट्रांसफ़र नहीं हुई, तो वो फैक्ट्री में जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लग चुका है वो उठाया नहीं जा सकता। और अगर मैं एडवांस बुकिंग लेने में और इस तरह की प्रोडक्शन में फेल हो जाऊंगा तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, कंपनी सप्लाईज नहीं दे पाएगी, और कंपनी को ताला लग जाएगा। और जब ताला लगेगा तो मियाँ शाहिद अमीन अपनी फैमिली के साथ मिलकर दोबारा नए नाम से उसी फैक्ट्री से प्रोडक्शन का आगाज़ करके अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवा के अपनी प्रोडक्शन वहाँ से जारी करेगा। यानी 50% से 100% पर जाने का मंसूबा बन चुका था। अब इसी मंसूबे के तहत 20 लाख का जो वादा था वो इसलिए 20 लाख नहीं दिए गए ताकि मेरे पास फाइनेंस ना आए और प्रोडक्शन रुक जाए और मैं सप्लाईज पूरी ना कर पाऊँ। कुछ मेरे पुराने ताल्लुक वाले
लोग ऐसे थे जिन्होंने मैंने जब ये सूरत-ए-हाल भांपी तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद निकलूँ। मैं उकाड़ा, साहिवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात और इन तमाम जो इलाके थे उनमें ख़ुद विज़िट करना, वीक का विज़िट 2 दिन मैंने रख लिए। कुछ मेरे लोग ऐसे थे जो कॉन्फिडेंस के थे, जिन्होंने पिछली मरतबा पहले साल मेरा प्रोडक्ट ऐसा ज़बरदस्त हिट हुआ था कि जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है वो सरकारी सैम्पलिंग के लिए मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे। यानी उन्हें इतना शोर था मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी का, जो सरकार की तरफ से जुर्माना और FIR के लिए सैम्पलिंग के लिए आता था महकमा, वो मेरे प्रोडक्ट के सैम्पलिंग करवाते थे। तो उन लोगों ने मुझे जाने पर बताया कि आपकी फैक्ट्री में कोई ऐसा शख्स बैठा है जो ये बताता है कि आप सप्लाईज नहीं दे पाएंगे। तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई और मेरे 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि फ़ोन पर मियाँ शाहिद अमीन था और फैक्ट्री में भी मियाँ शाहिद अमीन था। साहिवाल से वापसी पर सारा रास्ता मैं इस गंभीर सूरत हाल से नबूरद ज़मा होने के लिए प्लान करता रहा कि अब क्या हो सकता है। मेरा सारा सरमाया उनकी जगह पर लग चुका है। फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कोई मूवेबल चीज़ नहीं थी, इमूवेबल एसेट थी, वो उठाई नहीं जा सकती थी। तो मैंने लाहौर पहुंच के अगले दिन अपने 1-2 दोस्तों को मैंने ये सारी दास्तान शेयर की। तो मैंने ये देखा कि ये महसूस किया कि वो दोस्त जो हैं उनको, वो दोस्त बुनियादी तौर पर थे लेकिन बुनियादी तौर पर मेंटली दोस्त नहीं थे। उन्होंने इस सिचुएशन को, यानी मेरे राइज़ को उनके लिए अच्छा नहीं था, वो खुशाइन नहीं था। उन्होंने इस सिचुएशन को एंजॉय किया, मदद करने की बजाय या कोई मशवरा देने की बजाय, जिस पर मैंने फ़ैसला किया कि मैंने ये जंग अकेले लड़नी है। सबसे पहले मैंने ये फ़ैसला किया कि मियाँ शाहिद अमीन, अगर वो ये 20 लाख रुपया नहीं देते तो मियाँ शाहिद अमीन को वहाँ से मैं डिलीट करूँ। और मैंने इनके घर जाके इनसे उसी रात मीटिंग की। मैंने कहा जी आपकी पार्टनरशिप 50% उसी सूरत में सस्टेन करेगी अगर आप मुझे इस हफ्ते में 20 लाख रुपया देंगे, और अगर आप 20 लाख नहीं देते तो मुआहदे के तहत मैं आपको 4 साल में आपकी पेमेंट देने का पाबंद हूँ। अगर नहीं दे पाऊँगा तो आप मुझे ट्रांसफ़र ना कीजिएगा ज़मीन आपकी, और अगर मैं आपको पेमेंट दूँगा तो आप मुझे रजिस्ट्री और इंतकाल दे के ज़मीन मेरे नाम ट्रांसफ़र करने के पाबंद हैं। और फैक्ट्री नेक्स्ट डे जाके मैंने शाहिद अमीन को नोटिस दे दिया कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो ना आप मेरे पार्टनर हैं और ना ही आप मेरे अकाउंटेंट रहेंगे। तो ये इस सूरत हाल बिल्ड होने के बाद ये परेशान हो गए, क्योंकि कानूनी तौर पर वो सारी कंस्ट्रक्शन मैंने की थी, कानूनी तौर पर मेरे पास मुआहदा उसकी कॉपी मौजूद थी, कानूनी तौर पर उस मुआहदे की बुनियाद पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियल मीटर लगवाया था। तो ये किसी सूरत में इनके पास उस मुआहदे के हट के जाने की कोई वो नहीं थी, कंडीशन नहीं थी। और दूसरी बड़ी बात ये कि उस मुआहदे के ये अगेंस्ट इसलिए भी नहीं जाना चाहते थे कि इनके पास उस वक्त ये भूखे हुए थे और इन्हें पर मंथ 2-3 माह बाद किसी इंस्टॉलमेंट की पैसे की ज़रूरत थी जो लड़ाई की सूरत में रुक जाना था। लिहाजा इन्होंने 1 हफ्ते बाद मुआज़रत की, 20 लाख नहीं दिया और मियाँ शाहिद अमीन ने भी फैक्ट्री आना बंद कर दिया। अब ये इस इंतज़ार में बैठ गए कि मार्केट में तो इन्होंने जहर पाशी कर दी हुई है, लेकिन अब ये किसी तौर पर सरवाइव नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट से एडवांस बुकिंग नहीं होनी। इसको डिलीट करके, इसको निकालने के बाद शाहिद अमीन को हमने एक नई पॉलिसी, जिस पर हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन सारा कुर्बान कर दिया, हमने ये प्लान किया बैठ के मार्केटिंग टीम के साथ कि हमें इस साल अगर ना भी मुनाफा हो, हमने सप्लाईज मैनेज करनी इन टाइम। तो हमने एक इतनी अट्रैक्टिव पॉलिसी दी कि नेक्स्ट मंथ में हमें 200 मेट्रिक टन की एडवांस बुकिंग आ गई और टोटल हमारी प्रोडक्शन के 70% हमें तीसरे माह में जाके एडवांस आ गया, जिससे हम प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सके। अब जब हम शाहिद अमीन के डिलीट होने के बाद हम फिर दोबारा स्टेबल हो गए, तो मैंने इनसे ताल्लुकात इसलिए नहीं बिगाड़े कि इन्होंने जो करना था कर लिया, हमने उसका तदारक कर लिया। अब ये था कि फैक्ट्री की प्रोडक्शन और फैक्ट्री की मार्केटिंग को ऐसा तरीके से चलाने के बाद हम इनकी 4 साल में पेमेंट देने का प्लान कर रहे थे। और पार्टनरशिप का, क्योंकि इन्होंने खुद ही कोलैप्स कर लिया था, लिहाजा
یہ انتظار کرتے رہے کہ اس سیزن میں ان کی سپلائیز نہیں ہوں گی تو اس کی فیکٹری بند ہوگی، لوگ اس کی سپلائی لینے کے لیے فیکٹری میں آئیں گے، یہاں پر پھڈے ہوں گے، یہاں پر یہ ہوگا. لیکن اللہ نے مدد کی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. خدا کی مدد کب آتی ہے؟ جب آپ کی نیت بالکل صاف ہو. انما اعمال بالنیات، میرا ایمان کی حد تک یقین ہے کہ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو خدا کی مدد آپ پہنچتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ حق پر ہوتے ہو، حق سچ پر ہوتے ہوئے آپ سٹینڈ لیتے ہو اور آپ گیو اپ نہیں کرتے، تو اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو اسی طرح خدا مجھے نظر آیا، خدا نے میری مدد کی، اور ہم نے پہلے سال منافع، مائنر سا منافع لیتے ہوئے ہم نے پوری مارکیٹ کو اپنی سپلائیاں مینیج کی، اور پہلے سال ہم نئی فیکٹری میں سسٹین کیے. یہ یہاں تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوا. ننگی عدلیہ، ننگی پولیس، ننگے وہ لوگ جو لالچ اور ہرس اور ہوس میں ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کا آغاز اس کے بعد ہونا ہے. اور اگلی ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ اس سے ہم نکلے، اور جب ہم اس ایک بھمر سے باہر نکلے تو ہمارے لیے نئے جال بننا شروع کر دیے گئے، اور ان جال میں کس طرح پھانسنے کی کوشش کی گئی اور اللہ کی مدد کس طرح آئی، اور اس کے بعد کس گمبھیر طریقے سے ہمیں عدلیہ اور تھانے اور اس طرح کے معاملات، بدماش اور علاقے کے گنڈوں نے گھیر لیا. یہ میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ کافی لمبی ہو گئی ہے. ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں. اور یہ داستان میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک تو حق اور سچ پر نیک نیتی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کبھی گیو اپ کر جاتے ہیں تو آپ اپنے رائٹس کھو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو گیو اپ نہیں کرتا اور اپنے حق کے لیے فائٹ کرتا ہے. بہت شکریہ.